আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে যি সন্ত ৰামপাল সমাজৰ ৭৫তম আৱৰ্তন দিৱস উপলক্ষে যি বিশাল এই প্ৰদৰ্শনী গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত এক বিৰল দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক অদ্ভুত দৃশ্য সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্যসকলে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায় কয় যে ৰুটি কপৰা শিক্ষা চিকিৎসা और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान এই অন্নপূৰ্ণা অভিযানৰ অধীনত সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্যসকলে প্ৰায় বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ থাকে যে অন্ন বস্তুকে আদি কৰি পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেই আটাইবিলাক আনকি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও সন্ত ৰামপাল সমাজৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাইছে বিনামূলীয়াকৈ কৰা হয় সকলো দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোককে এই সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত এই বিৰল দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক অদ্ভুত দৃশ্য সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব লাগিব সন্ত ৰামপাল সমাজৰ যি মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে সমাজ কল্যাণৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু ইয়াত অন্নপূৰ্ণা অভিযানৰ যি সুন্দৰ এক দৃশ্য আমি বিৰল দৃশ্য দেখিবলৈ পাৰোঁ অদ্ভুত দৃশ্য তাৰ লগতে শ্ৰদ্ধালুসকল যিসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা শ্ৰদ্ধালু আহে তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ সৈতে পৰিচিত কৰাবলৈ কাৰণে ইয়াত আধ্যাত্মিক পুথিৰো ইয়াত প্ৰদৰ্শনী ইয়াত দেখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ইয়াত মই কেমেৰা পাৰ্চন জনাইছোঁ সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবৰ বাবে অগণন শ্ৰদ্ধালুৱে ভিৰ কৰি আছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ সৈতে পৰিচিত হ'বলৈ শ্ৰদ্ধালুসকলে যিসকলে সেৱা আগবঢ়াই আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে শ্ৰদ্ধালুসকলক বুজাবৰ কাৰণে যিসকল সেৱাদাৰ সন্ত ৰামপাল সমাজৰ যিসকল শিষ্য যিসকলে এই আধ্যাত্মিক প্ৰদৰ্শনী গৃহত সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে বুজাবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধালুসকলক প্ৰমাণৰ সৈতে বুজাবৰ কাৰণে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পুথিসমূহ ইয়াত উপস্থাপন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ সংক্ষিপ্ত গৰুড় পুৰাণ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সত্যাৰ্থৰ প্ৰকাশ তাৰপিছতে মহাঋষি দয়ানন্দ এইটো সৰস্বতী বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে এইখন এখন মানে পবিত্ৰ পুথি আৰু লগতে মহৰ্ষি দয়ানন্দৰ ইয়াত এই পুথিখন দেখিছে সৰস্বতীৰ জীৱন চৰিত বুলি লিখা আছে ইয়াত দয়ানন্দৰ মহৰ্ষি দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ জীৱন চৰিত আৰু লগতে শিৱ মহাপুৰাণ হিন্দী টিকা সহিত ভাগ 2 ইয়াত লিখা আছে আৰু লগতে কবিৰ সাগৰ এইখন পুথি সম্পূৰ্ণ ইয়াতে 11 ভাগ বুলি লিখা আছে এইখন কবিৰ সাগৰ আৰু গৰুড় পুৰাণ সৰুদ্ৰাৰ অনুবাদ আৰু শিৱ মহাপুৰাণ এতিয়া আমি শ্ৰদ্ধালুৰ পৰা কিছু অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম ইয়াত যিসকল সেৱাদাৰে সন্ত ৰামপাল সমাজৰ শিষ্য তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু অনুভৱ জানিবলৈ प्रयास करें आपका शुभ नाम सर जय कुंवर दास सर यहाँ पे जो आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी लगाया गया संत रामपाल जी महाराज का जो 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सर ये प्रदर्शनी क्यों लगाया गया सर ये सर लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं वो प्रमाण दिखाने के लिए लगाया गया है कि भाई ये प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं अपने हर धर्म के हिंदू धर्म के जैसे गीता जी है वेद है मुस्लिम धर्म के कुरान है क्रिश्चियन धर्म की बाइबल है सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब हैं ये सभी के सभी जो गवर्नमेंट जिनको मान्यता दे रही है सभी वो रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा प्राप्त ग्रंथ हैं वो सभी रखे गए हैं और उन्हीं से संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं सत्संग में जो वचन बताते हैं वो सभी प्रमाण दिखाने के लिए लगाई गई है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। और सर और एक बात जानना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज का जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोगों से हम लोग जब बात किया तो उन लोगों ने बोलता है कि कलयुग में सटीक जैसा एक महल बनेगा ये कैसे संभव है सर देखो सर ये आज के दिन लेटेस्ट चली है अन्नपूर्णा महिमा जो इसमें ये आपने देखा हुआ प्रदर्शनी के अंदर है जिसमें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा गरीब आदमी को जो हेल्प की जरूरत है स्वास्थ्य से संबंधित है हर चीज़ दी जा रही है तो एक जैसे भूखे को क्या चाहिए रोटी चाहिए उस रोटी के प्रबंध करते हैं जब तक उसको व्यवस्था नहीं होती जब तक वो बड़ा नहीं होता सर्विस नहीं मिलती या तब तक उसका आजीवन उसकी जो परवरिश की खर्चे की जो ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं सतयुग में यही तो था भाई कोई दुखी नहीं होगा संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर कह रखा है अगर भाई भूखे को रोटी गरीब को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसको जैसे कपड़ा पुस्तक स्वास्थ्य से संबंधित या मकान गैस सिलेंडर जो भी ज़रूरत हो वो सभी दिया जाएगा। धन्यवाद जी सच्चाई ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধালুগৰাকীয়ে জনাইছে যে আচলতে কলিযুগতে যে সত্য যুগৰ স্থাপন হ'ব বাস্তৱিকতে সেয়া সত্য হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সন্ত ৰামপাল সমাজৰ প্ৰদৰ্শনী গৃহত আহি আমি এক বিৰল অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ সঁচাকৈ কলিযুগতে যে সত্য যুগৰ তো এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া বাস্তৱিক এখন দৃশ্য আমি প্ৰদৰ্শনী গৃহৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত কেৱল হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলিয়ে নহয় ইয়াত অন্য ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু যিহেতু এক বিশাল প্ৰদৰ্শনী গৃহ ইয়াত অন্য বিভিন্ন ধৰ্ম
ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পবিত্ৰ পুথি, বিভিন্ন শ্ৰদ্ধালুৰ যি অনুভৱ, সেই পুথিবিলাকৰ এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেইবিলাক দৃশ্য সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবৰ বাবে। ইয়াত যিবিলাক গ্ৰন্থ আছে সেইবিলাকো দেখুৱাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত পবিত্ৰ মুছলমান ধৰ্মৰ কোৰাণ শ্বৰীফকো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত। ইয়াত আটক ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাখিছে শ্ৰদ্ধালুসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে মনৰ শংকা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, শ্ৰদ্ধালুসকলৰ যি মনৰ শংকা, সেই শংকা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যাতে মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ শ্ৰদ্ধালু আহি যদি এক ভাড়াক লয়, তেওঁলোককো বুজাবৰ কাৰণে কোৰাণ শ্বৰীফ ইয়াত ৰাখিছে। আৰু লগতে ইয়াত কোৰাণ মছজিদকো ইয়াত ৰাখিছে শ্ৰদ্ধালুসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ পবিত্ৰ শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আছে। বাস্তৱিকতে সকলো পবিত্ৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰক এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আমি দেখিবলৈ পালোঁ। গতিকে সকলো শ্ৰদ্ধালুকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজে বৰ্তমান সময়ত যি জ্ঞান সমাজে প্ৰদান কৰি আছে সঁচাই শাস্ত্ৰ প্ৰমাণিত হয়। এতিয়া আমি আৰু এজন শ্ৰদ্ধালুৰ পৰা কিছু অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতৰ কিছু অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মই তেখেতৰ কাষলৈ গৈছোঁ। নমস্তে जी। नमस्ते जी। सर आपका शुभ नाम? गजराज दास। सर यहाँ पे जो हम लोगों ने ये प्रदर्शनी गृह में जो ये कुरान शरीफ भी देखा, कुरान मस्जिद भी देखा, और दूसरे जितने भी पवित्र धर्म है सभी का सद्गुण यहाँ पे दिखाया गया। तो वर्तमान समय में समाज शिक्षित है, फिर भी नहीं मान रहा है कि कबीर ही परमात्मा है। आप लोगों का जो गुरु जी कबीर को ही परमात्मा बताते हैं, तो क्यों नहीं मान रहा है सर? नहीं, इसमें क्या है, सबसे पहले ना सभी के घरों में भक्ति हो रही है, और जो भक्ति है भक्ति वो हमें वो करनी चाहिए जो शास्त्र प्रमाणित भक्ति हो। इसीलिए सारे शास्त्र रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी भक्त समाज या कोई समाज के लोग आते हैं वो देखते हैं, कोई किसी की आस्था किसी धर्म में होती है, किसी की किसी धर्म में होती है, कोई किसी इष्ट को मानता है, कोई किसी इष्ट को मानता है। तो जो भक्ति है वो हमें पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। जैसे गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में कहा है कि जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करता है उसे न लाभ होता, न सुख होता, न गति होती, ना उसकी कार्य सिद्धि होती, मोक्ष भी नहीं होता उसका। तो भक्ति जो करनी है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करनी है। तो जो इसलिए शास्त्र है, शास्त्र में ये बताया गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब है, और कबीर साहिब के लिए ही एविडेंस है। जैसे कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में लिखा हुआ है, फला तूतिल काफिरन व जाहिदहुम बी जिहादन कबीरा। यही चीज़ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है 721 पेज पे, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम बे एप्तु परवरदिगार। यही यजुर्वेद अध्याय 822 में लिखा हुआ है, संख्या 822 में लिखा हुआ है। यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 32 में भी लिखा हुआ है कबीर साहब। अलमाइटी गॉड कबीर होली बाइबल में लिखा हुआ है। जब सभी धर्मों के सदग्रंथ इस चीज़ को एविडेंस कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, तो इसमें शक की गुंजाइश का है। इसलिए सब चीज़ रखे ताकि किसी के मन में अगर जो कोई शंका है तो उसकी शंका को दूर किया जा सके। एक्चुअल में होता ये था, जो हमें भक्ति करनी चाहिए ना, भक्ति शास्त्रों के हिसाब से करनी चाहिए, भक्ति पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। लेकिन भक्ति का स्तर धीरे धीरे गिरता चला गया। जैसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बाद क्या हुआ, फिर हम इष्ट की भक्ति करनी शुरू कर दी। अभी हम मोटे तौर पे इस चीज़ को समझते हैं, हम दो हाथ वाले हैं। हमने जो अपने से सुप्रीम ये भगवान किसको बना दिया, जो चतुर्भुजी हाथ वाले हैं। लेकिन चतुर्भुज वाले भगवान मानते हैं जिनको हम, तो वो फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं? अब हम उनकी भक्ति करेंगे जो जिनकी भक्ति वो चतुर्भुजी भगवान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी करते हैं ना भक्ति। एक्चुअल में जी ये करते हैं 8 हाथ वाली दुर्गा की भक्ति। दुर्गा देवी भागवत पुराण के 562 पेज पर बता रही है कि आपको काल की भक्ति करनी है, जिसके 1000 भुजाएं हैं, और काल का मंत्र ओम बताया है। यही यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र नंबर 15 है, और गीता जी के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये बताया कि जो काल ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, और ब्रह्मलोक पर्यंत भी आवागमन में है, मतलब जन्म मृत्यु में। हमें जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है जन्मने और मरने का लगा हुआ है। आज इंसान ने सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल हैं। यदि जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको भूख तो उन्हें भी सुबह लगती है, उनको भी कोई बीमारी हो सकती है, क्या उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या नहीं है ना। तो ये जो रोग लगा हुआ है जन्मने और मरने का लगा हुआ है, तो इस जन्म मरण के रोग को दूर करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। गीता जी में 18 अध्याय बोल रहे हैं, एक अध्याय और भी बोला जा सकता था, लेकिन गीता जी के 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में कहा है कि आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी है जो तत्व ज्ञान को बताएगा।
और तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी के 15 अध्याय के 1 से 5 श्लोक में बताई गई है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी जड़ से पत्तों तक बता दे वो तत्वदर्शी संत है। और वो तत्वदर्शी संत ही जो गीता जी के 18वें 17वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में कहा है ओम 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविधे समर्थ तेन वेदा च यज्ञ च वियुता पुरा। उस ओम तत्सत का निर्देश किया है गीता ज्ञानदाता ने। उसके पूर्ण रहस्य को तत्वदर्शी संत ही बताएगा। आज जो है संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के रूप में आए हैं और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति बताते हैं। उसी भक्ति से हमारा मोक्ष होगा। तो सर और एक बात जानना चाहेंगे सर, और जो भी मुसलमान श्रद्धालु है, जब हम लोगों ने उन लोगों को पूछते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार है, तो मुसलमान का जितने भी श्रद्धालु है उन लोगों ने बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो हमारे जो शास्त्र है कुरान शरीफ है या जो भी पवित्र गीता है, इसमें कोई प्रमाण है क्या परमात्मा साकार है सर? कुरान शरीफ में प्रमाण है कि अल्लाह ने पूरी धरती 7 दिन में ये जो भी जितनी रचना करनी थी 6 दिन में रचना करके 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजा। तो कोई मानव सदृश्य है। एक्चुअल में क्या है, जो परमात्मा है वो साकार है, सह शरीर है, नाम कबीर है। ये सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं। एविडेंस है, जो चाहे आपको वो एविडेंस हम इन धर्म ग्रंथों में दिखा सकते हैं। ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধালুগৰাকীয়ে জনাইছে আচলতে পৰমাত্মা সকলোৱে যি মালিক, সকলোৱে সৃষ্টিকৰ্তা ৰচনহাৰ, তেওঁ সাকাৰ হয়, পবিত্ৰ কোৰাণ শৰীফক সাক্ষী দিয়ে বুলি এই শ্ৰদ্ধালুগৰাকীয়ে জনাইছে। আচলতে সেই প্ৰমাণ দেখুৱাবৰ বাবে ভকতৰ শংকা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত এই আধ্যাত্মিক প্ৰদৰ্শনী লগোৱা হৈছে, যাতে ভকতৰ শংকা, মনৰ শংকা যি আছে সেই শংকা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সন্ত ৰামপাল সমাজৰ সেই সেৱাদাৰসকলে সেৱা আগবঢ়াই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত। মই কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন জনাইছোঁ গোটেইবিলাক দৃশ্য দেখুৱাবৰ বাবে। যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল শ্ৰদ্ধালুৱে আহি ইয়াত প্ৰদৰ্শনী দৃশ্য উপভোগ কৰিব আহে, তেওঁলোকক মনৰ শংকা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰদৰ্শনী গৃহত আটক ধুনীয়াকৈ সকলো পবিত্ৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰসমূহ ইয়াত উপস্থাপন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। গতিকে সকলো এছ এ নিউজৰ শ্ৰদ্ধালুক, সকলো দৰ্শকক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ এছ এ নিউজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য দৃশ্য দেখুৱাবৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰয়াস কৰিম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।